What is the meaning of diagnosis? Anybody can tell me? टू क्योर मतलब किसी चीज का इलाज करना और कुछ? उसकी छानबीन करना सर किसी बीमारी को आइडेंटिफाई करके उसके बाद उसका हाँ, ठीक है। क्योर करना। देखा होगा जहाँ पर हम ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं वहाँ पे दो वर्ड यूज होते हैं, या तो लिखा रहता है पैथोलॉजी सेंटर या लिख देगा श्रेया डायग्नोस्टिक सेंटर या रश्मि डायग्नोस्टिक सेंटर, ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस मीन्स पता करना, और जब पता करेंगे तो उसके बाद देन ओनली वी विल बी एबल टू treat or cure any disease. Okay, so now the heading which we have to study, that is molecular diagnosis. Molecular diagnosis means what we are going to diagnose. क्या पता करने जा रहे हैं हम इस हेडिंग के अंदर? सर मॉलिक्यूल्स के बारे में, मतलब बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं। डायग्नोसिस का मतलब ही है कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू डिसऑर्डर और डिजीज। किसी डिजीज को या डिसऑर्डर को पता कर लेना मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके। आई थिंक कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल, इट इज क्लियर टू यू पीपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल? मॉलिक्यूलर लेवल मींस कि लाइक इफ वी आर हैविंग एनी फीवर, टाइफाइड, malaria, anything, in that case we are not going for molecular diagnosis. We are simply going for pathological test in which they are identifying different type of pathogens in our blood. In this technique we will know that what are the molecules which are responsible for causing different disease. So what are the molecules? Maybe some virus or bacteria or pathogen is entering into our body, and that pathogenic agent is secreting some chemicals, and that chemicals are responsible for causing various disease. Clear? So molecular diagnosis means to detect any disorder or any disease at very basic or molecular level. Heading समझ में आ रही है क्या है? Okay. Yes. Because of advancement in biotechnology, presence of pathogen can be detected even in very low concentration. यही इसका फायदा है कि अगर पैथोजन बहुत लो कंसंट्रेशन में भी है, then also we will be able to identify. One heading related to this we have studied, that is ELISA. ELISA के बारे में पहले से हमने डिस्कस किया है. It is an advanced diagnostic technique in which what we do, in which we simply try to know the antibodies which are produced in our body, and that antibodies must be produced in response to different type of antigens. ये clear है? Yes. ये कई बार at least 5-6 times I have repeated it. Why I am repeating it again and again? Because it is an important technique. अगर आज के डेट में कभी भगवान न करे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, बट अगर जाना होगा, इफ एनी डिसऑर्डर इज देयर, तो आप देखेंगे कि उसके जो भी टेस्ट होंगे उसमें एलाइजा टेस्ट प्रमुख, इट इज अ मेजर टेस्ट, वो होना ही होना है। अगर ठीक ठाक हॉस्पिटल रहा तो, और अगर कम पैसे में इलाज करने वाला रहा तो, ज्यादा पैसे में करने वाला होगा तो एक टाइफाइड का टेस्ट कराएगा, फिर मलेरिया का कराएगा, फिर जॉन्डिस का कराएगा, फिर बिलीरुबिन कराएगा, जितने टेस्ट होते हैं सबको अलग अलग करा के 5-7-8 हज़ार रुपये बना लेगा। और पैसा बचाना है तो सिंपली एक टेस्ट करके वी कैन डायग्नोज। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो व्हाट आर द टेक्निक्स? वन इज पीसीआर, another is rDNA technology, and third is ELISA. In PCR, the suspected gene is taken out and is amplified, which helps in easy detection. PCR already we have studied, polymerase chain reaction. Yes sir. ठीक है? तो यहाँ पर अगर किसी जीन पे हमें डाउट है कि दिस जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफेक्टिव आई और डिफेक्टिव बॉडी स्ट्रक्चर, तो वी सिंपली टेक आउट दैट जीन फ्रॉम द बॉडी. हाउ वी आर गोइंग टू टेक दैट जीन, ये सबको समझ में पता है? We simply take out that gene, and by the process of biotechnology we go up to the process of polymerase chain reaction. When that gene is producing multiple copies, in that case we can easily detect the effect of that gene. Clear hai Farhan, Shivendra? Okay, come to next. In rDNA technology, a small segment of DNA or RNA is taken and is tagged with a radioactive molecule which is also called as probe. ध्यान से थोड़ा इसको समझेंगे, ये इसमें नया है। क्या इसमें हम कर रहे हैं? In rDNA technology, a small segment of DNA or RNA is taken and is tagged with a radioactive molecule, and now that DNA is called as probe. Means what we are doing? We are taking out any DNA, we are attaching some radioactive elements or compounds on that molecule,
after attachment of DNA along with the radioactive molecule, it is called as probe. उसको probe नाम दिया गया. क्या इसका काम होगा आगे देखिए. This probe bind with its complementary copy and is allowed to produce multiple copies, which is followed by autoradiography. थोड़ी advanced technique है. This probe binds with its complementary copy. Suppose करो DNA लिया गया, DNA के एक segment को लिया गया, उसको हमने रेडियोएक्टिव करके प्रोब कर दिया, या आरएनए को लिया गया तो आरएनए ऑलरेडी सिंगल स्टैंडर्ड है, उस आरएनए को वी आर अलाइंग दैट आरएनए to bind with its that RNA or that single strand of DNA. We are allowing that DNA or RNA to bind with its complementary copy in the host. Once again, I will repeat it. First, listen it, and then it is detected by a method which is called as autoradiography. Autoradiography, autoradiogram. Autoradiogram is a machine. In that machine, when we put different type of segments of DNA or RNA, the result produced by that machine is called as autoradiography. इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे याद हो, अगर क्लास 11th में we have studied ECG. The technique was, yes sir, the technique was called as electrocardiography, and the machine was called as electrocardiogram. ठीक है, ठीक वैसा ही. सना, आई थिंक योर माइक इज नॉट वर्किंग. whatever, nothing is audible, whatever you are saying. Okay, once again I will repeat. The cells having meta, what we have written, क्या लिखा है वहां पढ़ो. The cells having mutated gene ना, हाँ ठीक है. The cells having mutated gene will not appear in the photographic, will not appear on photographic film because the probe does not have complementarity sequence of mutated gene. थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि हमने एक डीएनए का सेगमेंट लिया, उस डीएनए के सेगमेंट पे हमने कोई ना कोई रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल जोड़ दिया. नाउ दैट डीएनए सेगमेंट अलोंग विद दैट रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, नाउ इट इज कॉल्ड एज प्रोब. ओके, थोड़ा ध्यान से इसको सुनेंगे. उसको हमने प्रोब बनाया. इसके बाद इस प्रोब को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया. तो ये प्रोब जो है या तो डीएनए का सेगमेंट है या आरएनए का सेगमेंट है, तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी से जाके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा by the formation of hydrogen bond. ये तो समझ में आ रहा है कि अगर उस प्रोब को हमने इंट्रोड्यूस किया, जैसे इससे पहले वाले हेडिंग में हमने पढ़ा था मेलिडोगाइन में, कि सिंगल स्टैंडर्ड करके छोड़ दिया, जैसे ही दूसरा वाला स्टैंड मिला वो उससे बाइंड करके कॉम्प्लीमेंट्री लॉ को फॉलो करके बाइंड कर गया और स्टेबल बना दिया. यहाँ पर भी यही हम कर रहे हैं कि हमने डीएनए के एक सेगमेंट को लिया, उसको प्रोब बनाया, उस प्रोब को वापस से डीएनए में डाल दिया, वापस से सेल में डाल दिया. अब क्या होगा, द सेल्स हैविंग म्यूटेटेड जीन. अब सपोज करो कि इस प्रोब को हमने 100 सेल में डाला है सपोज, और वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट प्रोब इवन इन अ सिंगल सेल आल्सो. तो इफ सिंगल सेल इज देयर, तो दैट सिंगल सेल विल कीप ऑन डिवाइडिंग. वो सेल जितने बार डिवाइड करेगा उतने बार हमारा प्रोब भी डिवाइड करेगा. Yes, sir. है ना. लेकिन उस सेल का या उस सेल में जो डीएनए होगा उसका वो सेगमेंट जहां पर कोई म्यूटेशन हो गया होगा, म्यूटेशन मतलब जेनेटिक डिफॉर्मिटी से है यहाँ पे, अगर किसी सेगमेंट में म्यूटेशन हो गया होगा उस सेल में, तो जब वो सेल अपनी कॉपी बनाएगा, वहां पर जो कॉपी बनेगी वहां पर म्यूटेटेड जीन की कॉपी नहीं बनेगी. समझ में आ रहा है क्यों नहीं म्यूटेटेड जीन की कॉपी बनेगी? क्योंकि जो प्रोब हमने ऐड किया था वो प्रोब म्यूटेटेड जीन के हिसाब से नहीं ऐड किया था, वो प्रोब हमने नॉर्मल जीन के हिसाब से ऐड किया. अब नॉर्मल जीन प्लस म्यूटेटेड जीन, थोड़ा बोर्ड पे मैं इसको एक छोटा सा डायग्राम से, रफ डायग्राम से आई विल एक्सप्लेन यू. चॉक इज नॉट देयर, वेट 1 मिनट. Anyhow, I have got one small piece of chalk, हमारा काम हो जाएगा. Suppose this is a
segment of DNA or RNA, we have added one radioactive molecule. Now we can write it as R. Clear? This is radioactive probe. Okay, ये probe we are introducing this probe in any cell. Cell means we are attaching it with DNA. Suppose it is containing ATCG. So when it will enter in the cell, this is probe and this is original DNA, ATCG. So the complementary will be TAGC. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो नॉर्मल प्रोसीजर था. अब सपोज करिए कि ये जो ओरिजिनल O मीन्स ओरिजिनल सेल, ओरिजिनल डीएनए, इसके पास एक अलग से कोई और नाइट्रोजनस बेस है. अलग से मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वी हैव रिटन इन आवर नोट्स दैट इट इज ए म्यूटेटेड जीन. तो म्यूटेटेड ABCD हम कुछ भी लिख सकते हैं. यू की जगह पे सपोज करो कि एक जीन में म्यूटेशन हो गया, नाउ वी हैव रिटन इट एज ए जीन. ओके, ओरिजिनल सेल में किसी एक जीन में कुछ गड़बड़ी हो गई, दैट प्रॉब्लमेटिक थिंग्स वी हैव मेंशन्ड एज A. नाउ दिस our probe has bind with this original DNA, but it will not bind at this segment. Why? Because this segment is a mutated gene. अब ये सेल ये DNA जितने बार अपनी कॉपी बनाएगा, उतने बार की कॉपी जो बनेगी, वहां पर जो म्यूटेटेड जीन होगा वो हमेशा प्रोब से क्या होगा? अलग रहेगा. अलग रहेगा क्योंकि प्रोब के पास इस म्यूटेटेड जीन के लिए कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस पेयर मौजूद नहीं है. कुछ समझ में आ रहा है सना, संजना? यहां तक एक बार फिर से देखो कि यहां तक ये नॉर्मल ओरिजिनल जीन था. ओरिजिनल जीन पे जब हमने प्रोब को अटैच किया तो नाउ दिस ओरिजिनल जीन गेट्स कंबाइंड विद द प्रोब following the law of complementarity. Law of complementarity means adenosine with thymine and cytosine with guanine. यहां तक तो हो गया. बट हमने नोट किया है कि अगर इस ओरिजिनल सेल में म्यूटेशन हुआ है, म्यूटेशन मींस सडन जेनेटिक चेंज, वो जेनेटिक चेंज कुछ भी हो सकता है विच वी कांट डिफाइन. सपोज दिस इज अ सडन जेनेटिक चेंज इन दैट म्यूटेटेड, इन दैट ओरिजिनल सेल. अब जब ये अपनी कॉपी बनाएगा तो ये जितनी भी कॉपियां बनाएंगे उसमें A जो है, क्योंकि जो प्रोब हमने जोड़ा था इसके पास ATCG ही था, ये कभी भी इसके पास कोई ऐसा नाइट्रोजनस बेस नहीं आएगा जो इस A से, ये A जो है ये म्यूटेटेड वाला A है, इस A को हटा के इसको हम कुछ और कर दो, इसको B कर दो, क्योंकि A यहाँ पर एडेनोसिन हो जा रहा है. B स्टैंड फॉर म्यूटेटेड जीन. ओके, तो अब यहाँ पर भी जो बनेगा ये TAGC ओरिजिनल का बन जाएगा और प्रोब के पास तो इसका कॉम्प्लीमेंटरिटी है ही. अगर ये T है तो ये ATCG होगा. यहां पर हम देखेंगे तो B यहां पर भी क्या हो गया? अलग हो गया. एनीथिंग यू पीपल आर गेटिंग? कुछ समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा कि जो हमने प्रोब ऐड किया था, दैट प्रोब हैज बीन एडेड फॉलोइंग द लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी एंड दैट प्रोब हैज बीन प्रिपेयर्ड as per the normal gene. Normal means the gene which is not having any defect. Now if any defect will be there, the probe will not bind with that defective gene at that particular segment. ये बात समझ में आ रही है कि उस सेगमेंट पे प्रोब जो है कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ को फॉलो करके बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि वो जो सेगमेंट था वो उस जीन का म्यूटेटेड सेगमेंट था. क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? यस सर. ठीक है. अब क्या करेंगे हम, इस सेल को जो अभी हमने मशीन की चर्चा की, ऑटो रेडियोग्राम में जब हम डालेंगे, व्हाट विल हैपन? जो प्रोब हमने रेडियो एक्टिव किया था, रेडियो एक्टिव इसीलिए किया था क्योंकि वो हमें दिखाई देगा. समझ में आया? रेडियो एक्टिव करने का मतलब सिर्फ इतना था कि वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द सेलेक्टेड जीन. सी व्हाट वी हैव रिटन. द सेल्स हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म because the probe does not have complementarity sequence with the mutated gene. जो फोटोग्राफिक फिल्म बनेगी वहां पर जहां पर म्यूटेशन हुआ रहेगा वो उस पे अपीयर नहीं होगा. अगर अपीयर नहीं हुआ इट मींस व्हाट? कि दैट जीन मस्ट हैव गॉन थ्रू सम म्यूटेशन. समझ में आई बात, कहानी?
Yes, sir. एक बार और मैं रिपीट करता हूँ इसके लैंग्वेज को, द लैंग्वेज विच वी हैव रिटन इन नोट्स, बिकॉज इट इज लिटिल बिट नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा नया है. In rDNA technology, a small segment of DNA or RNA is taken and is tagged with a radioactive molecule which is called as probe. ये ध्यान में रखेंगे, अगर इससे पहले भी याद हो तो कहीं हमने शायद रेडियो एक्टिव वर्ड कहीं पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ पढ़ा था. जहां पर भी हम रेडियो एक्टिव कर रहे हैं, याद है कहीं पढ़े थे अंगद? सर वो इथेरियम ब्रोमाइड से यूवी रे का यूज कर रहे थे, वही रे. Yes. ठीक है, यूवी रे. हाँ. वहां पर भी ये ध्यान दिया होगा कि वहां पर हम रेडियो एक्टिव कर रहे हैं किस काम के लिए? टू आइडेंटिफाई इट, देखने के लिए. हाँ, टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं कि डीएनए को हम रेडियो एक्टिव कर देंगे तो वो आसानी से हमें दिखाई दे देगा फोटोग्राफिक फिल्म में. द प्रोब बाइंड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी एंड इज अलाउड टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज which is followed by autoradiography. The cells having mutated gene will not appear on photographic film because the probe does not have complementarity sequence of mutate. Clear है फरहान, आंचल, सृष्टि? Just raise your hand. If anybody is still having doubt, तो एक बार पूछ लो. If it is clear, तो I should proceed. आगे चलें सोनू? यस सर. Okay. सर मेरा एक डाउट है. Yes आकृति. सर ये जब हम मतलब जब ये रेडियो एक्टिव जो हमारा डीएनए आरएनए का सेगमेंट है सर, ये जब म्यूटेटेड जीन के साथ नहीं बाइंड होगा तो सर कैसे पता चलेगा कि उस जीन में डिफेक्ट है जिसके लिए हम इतना सारा टेक्नोलॉजी का यूज कर जब रहे हैं? हम फोटोग्राफिक फिल्म पे देखेंगे, ठीक है, तो जिसमें जिसमें जो जो हमें दिखाई दे देगा, दिखाई दे दिया मतलब वो सारे जीन क्या होंगे? नॉर्मल होंगे. और जो जीन का सेगमेंट हमें नहीं दिखाई देगा मतलब वो जो सेगमेंट है वो क्या होगा? म्यूटेटेड होगा. हम इस टेक्नोलॉजी को इसलिए फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन जो है वो डीएनए या जीन के बहुत छोटे सेगमेंट में होता है. अगर पूरे में म्यूटेशन हो गया तो इंसान नहीं भगवान हो जाएगा या शैतान हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा. समझ में आ रहा है? तो म्यूटेशन कभी भी होता है तो जीन या डीएनए के बहुत छोटे सेगमेंट पे होता है. तो जो ठीक ठाक है वो हमें दिखाई दे रहा है, यानी ज्यादातर हिस्सा हमें दिखाई दे देगा. ऐसा कह सकते हैं कि 99.99% तक जीन हमें फोटोग्राफिक फिल्म पे दिखाई देंगे. अगर 0.01% नहीं दिखाई दिया मतलब कि उस जीन में म्यूटेशन हो गया है. सर हाँ, यहाँ पे जैसे अगर कोई एचआईवी वायरस किसी पेशेंट को अटैक किया तो भी उसके सेल्स में म्यूटेशन होगा, ये भी एक म्यूटेशन माना जाएगा ना? बिल्कुल म्यूटेशन माना जाएगा. उसने हमारे जीन को चेंज कर दिया. म्यूटेशन मतलब ये कि सडन चेंज. सिंपली अगर तुम देखो कोई इन्फेक्शन नहीं है, एक इंसान है, हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा एकदम नॉर्मल है, और बच्चा अचानक से टेढ़ी आंख टेढ़ा हाथ पैर वाला पैदा हो गया, मीन्स व्हाट? कि म्यूटेशन हैज अकर्ड, है ना? एनी अदर डाउट इन दिस टॉपिक? Okay, now come to next. ELISA is already, it has been discussed many times. Now last heading is ethical issues. Wait one second. किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना होता है कि जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं उन हर रिलीजन के कुछ न कुछ इथिकल इश्यूज बनाए गए हैं. किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमें बायोटेक्नोलॉजी में इसको ध्यान में रखना होता है कि वी आर नॉट गोइंग टू हार्म एनी ऑफ द इथिकल इश्यूज ऑफ एनी रिलीजन. समझ में आया? किसी भी रिलीजन को जो अलग अलग जो धर्म में अलग अलग जानवर वगैरह को इंपॉर्टेंस दी गई है उसको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते. अगर हमने उससे रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट किया तो जो GEAC committee was there, that committee will not approve our experimentation. Okay, just see what is there in ethical issues. Indian government has set up an organization GEAC which regulates GM research and introduction of GM organisms for public services. GEAC already it has been discussed. Why it has been discussed here also? साक्षी मदेसिया क्यों पेन को डांस करा रही हो? खुद ही कर लो खड़े होके, और अच्छा रहेगा. सब बोर हो गए होंगे आधे घंटे में. हद है, कहाँ तुम लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देते हो.
टॉपिक से। हाँ ठीक है, तो GEAC मेनली इसीलिए बना कि किसी भी एनिमल, जैसे ह्यूमन में कुछ प्लांट्स भी हैं हमारे हिंदू कल्चर में जिनको बहुत ज्यादा धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा गया है, जिसमें तुलसी मेन है ना। अब सपोज करो कि कुछ दिन में कोई ऐसा उपाय लगाने लगे कि तुलसी के ऊपर आम का पौधा निकल आए, तो अब वहां खूब आराम से तुलसी को खाएंगे, उसकी गुठली फेंक देंगे। तो ऐसा अगर हम करना भी चाहेंगे तो हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? That is ethical issues. And last is biopiracy. Piracy what means? What is the meaning of word piracy? सब पायरेट्स वाला पायरेसी। हाँ हाँ, चोरी टाइप में ना, चोरी, कॉपी करना। पायरेसी मीन्स कॉपी करना। जैसे सीडी या डीवीडी में ये बहुत कॉमनली यूज होता है कि पायरेटेड सीडी है या पायरेटेड डीवीडी है। बायोपायरेसी मीन्स क्या हो गया? means we are using others technique to create our product. नहीं, बायो मतलब लिविंग। नहीं, ठीक, सॉरी। किसी लिविंग थिंग को कॉपी कर लेना। जैसे सपोज करो कि एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझा देता हूं, अगर ये कट भी जाएगा तो आगे पढ़ लोगे समझ आएगा। एक बासमती चावल सबने सुना है? यस सर। है ना। बासमती चावल की ओरिजिन जो है वो इंडिया से है। सपोज करो कि अमेरिका से कोई आया और उसने बासमती चावल का एक चावल का दाना अपने साथ पॉकेट में रख के लेके चला गया। एक चावल का दाना ले गया मतलब वो पूरा जीन लेके चला गया, लेके गया। अब वहां वो अपने लैब में आसानी से उस जीन की मल्टीपल कॉपीज बना के और अपने यहाँ आराम से बासमती बना लेगा। हमने 4 साल की रिसर्च करके बनाया और उसने 2 दिन में बना लेगा, क्योंकि उसको वो जीन मिल गया है ऑलरेडी। इसी काम को रोकने के लिए एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ, एंड दैट कंप्लीट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी। लेट मी रीड इट। Biopiracy means use of bioresources of any particular nation by different multinational companies without having proper authorization from the concerned nation. जैसे for example, a very common example is there neem tree. नीम जो है it is highly antiseptic, highly antibacterial, बहुत सारी properties हैं। एक वर्ड सुना है पेटेंट? पेटेंट मीन्स किसी को पता है? यस सर। यस सर। बोलो। सर ऑथराइज्ड करना मतलब अगर कोई एक्सपेरिमेंट ऑथराइज कर लेना। ठीक है, सपोज करो कि नीम की ओरिजिन हमारे यहाँ थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, नीम को पेटेंट करा लिया। नीम को पेटेंट कराने से क्या फायदा हुआ कि अब जो पतंजलि नीम कांति साबुन बन रहा है, ये अमेरिका में भी बन रहा है, लेकिन वहां पतंजलि नीम कांति न बन के एली लिली नीम कांति बनता होगा। जैसी कंपनी वैसा नाम हो जाएगा उसका। ठीक है, लेकिन वहां पर अगर वो साबुन 10 रुपए का बिक रहा है, तो since that country has taken the main thing from India, तो he has to pay something to our nation also. इसी को बोला गया क्या, पेटेंट कराना। समझ में आया? तो बायोपायरेसी में यही होता है कि हमने अगर कोई रिसर्च की तो हम उस रिसर्च को पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट तो करा लिया, लेकिन अब अगर ऐसे जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि कोई एक चावल का दाना चोरी करके लेके चला जाए तो हमें पता नहीं चलेगा, और वो अपने यहाँ ले जाके बना लेगा, पूरा का पूरा प्लांट या स्पीशीज डेवलप कर लेगा। दिस सेम टेक्निक इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी। एनी डाउट? बहुत सारे इंडियन मेडिसिनल प्लांट इंडियन बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी गवर्नमेंट जो है सबको पेटेंट नहीं करा सकी है। वो तो धन्य भाग हो बाबा रामदेव का, आई एम नॉट हिज फॉलोअर, बट उनके प्रयास से ज्यादातर जो मेडिसिनल प्लांट थे इंडियन ओरिजिन के, ओनली बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट ये पेटेंट हो चुके हैं। अभी भी बहुत सारे नहीं हुए हैं। ठीक है, कभी रिसर्च पेपर वगैरह देखेंगे तो ये चीजें समझ में आएगी, बट अभी ये तुम्हारे लेवल से ऊपर का है, तो इस पे सोचने की जरूरत नहीं। हाँ सर, जो चुरा के लिए जाते होंगे हम लोगों का, मतलब जो हम लोग करते हैं, तो उन लोग के ऊपर केस भी तो कर सकते हैं हम लोग। तो अपने मतलब पता चलेगा तब ना, पता चलेगा तब। तो उसी के लिए तो पायरेसी वर्ड यूज हो रहा है। पायरेसी, बाजार से 20 रुपए की सीडी खरीद के ले आ रही हो, आराम से पिक्चर देख ले रही हो, जिस पिक्चर को बनाने में 200 करोड़ रुपए लगा है, कौन तुमको पकड़ रहा है? कोई नहीं सर। लेकिन टर्मरिक के टाइम भी तो ऐसे ही हुआ था ना कि टर्मरिक हम लोग के यहाँ का था और दूसरे कोई वो कर ले, अगर कोई पीछे पड़ेगा तो पकड़ लेगा। इसीलिए पायरेसी वर्ड, पायरेसी नाम ही दिया गया कि वो नाम ही है चोरी करना, तो चोर तो पकड़ा ही जाएगा एक दिन।
बट तो सर पकड़ा जाएगा उसके बाद केस हो सकता है ना उसके ऊपर? हाँ जी, मतलब जैसे कि कौन पकड़ने जाएगा, कौन केस करने जाएगा अमेरिका में? अमेरिका में लोग बासमती खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, तुम्हें क्या पता है यहाँ से? मैं जा रहा हूँ पकड़ के लाने। हाँ, जो सर एरोप्लेन हम भेजे थे अंगद, उसी एरोप्लेन से जाना उसी डांस में करने। जाएगा। हाँ, यस सर, मजा आ जाएगा। सर वो एरोप्लेन डांस कर रहा था ना। हाँ। हाँ। चलिए, और किसी को कुछ डाउट? सर मेरे में एक और टॉपिक दिया है सर, पता नहीं मेरी बुक कैसी है, दूसरा टॉपिक ही दे दिया सर। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ तो ऐसी ऐसी दुर्घटना होती रहती है। नहीं सर,